Good afternoon. Um, this is a video where we are going to discuss about the syllabus of TGT-PGT English as we are going to start our classes of TGT-PGT English soon. So that's why we thought of discussing about the syllabus in this particular video. So the syllabus, as we can see, uh, in this given syllabus, the age starting is the starting age is the age of Chaucer, age of Elizabethan, age of Milton, age of Pope, age of transition, age of Romanticism, the Victorian age, modern writing in English, and modern Indian writing in English. Okay, so this is the given syllabus now by the official website. But now that now that we are going to discuss the syllabus, the starting age given here is the age of Chaucer. But we have or we also have to learn about the age before the Chaucer age. Okay, so I know the questions. Okay, the questions are going to come from these ages which are given in the official website, but we also have to learn the ages before Chaucerian age. Okay, because if you don't know this base of the literature, okay, because the ages before the Chaucerian age are the base of I mean the age before the Chaucerian age is the base of the this literature. Okay, so even though it is not given in your syllabus, okay, but still you have to learn the age before the Chaucerian age, and even after Chaucerian age, you can see there is age of Elizabethan. But before going to Elizabethan age, we also have to know the Renaissance period, and after that Elizabethan period. Okay, so that we have to know. So for that we have to discuss the syllabus in detail. Okay, so first age that comes before the Chaucerian age is the Anglo-Saxon period. Okay, so Anglo-Saxon period, the age here, the age is here. You can see it runs from 1450 to 1066. Okay, this prevalent age of that period. Okay, so now when we talk about Anglo-Saxon period, here we will learn about the Old English. What is the base of the English? Okay, that we are going to learn in this section. So before going to Chaucerian age, okay, the Chaucerian age is the Middle Age. ओके, मिडिल एज जो है, चौशेरियन एज जो है, उसको हम लोग उसको मिडिल इंग्लिश एज बोला जाता है, एरा बोला जाता है, जिसमें डेवलपमेंट जो है, ओके, द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर हैपन इन दिस पर्टिकुलर age only. Okay, but before this, in the Anglo-Saxon period, mainly we have to learn. Okay, here we don't have to learn about the this age. I mean the literary characteristics. Okay, we have to know the background, we have to learn about the background, the theme, the style they have, they follows in that period, in the literary style, okay, that they follows in that particular period. And after that we will come to Chaucerian age. Now here we will learn what happened before 1450. Okay, after 1452, this during this period 1452, this 1066, दिस पीरियड, इसमें क्या हुआ, इस बीच में क्या हुआ वो हम पढ़ने वाले हैं, और इसके पहले क्या हुआ था, क्या क्या इवेंट्स हुआ जिससे हम लोगों का ये एरा बना, एंग्लो सेक्शन पीरियड बना, या एंग्लो सेक्शन एरा बना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर. ठीक है, so 1450 is the period actually where this Anglo-Saxon, this is the marking age. 1450 is the marking age of Anglo-Saxon period. Okay, and 60 from 1066, it is the end of Anglo-Saxon period. Why? Because in 1060 the Battle of Hastings has happened. So
This is the this in this particular age, this Norman conquest. Okay, this Hastings, the Battle of Hastings. Okay, this is also known as the Norman Conquest, right? So this happened in for 1066, and from 1066, the age ends there, and the Chaucerian age starts from 1160, 1066 to 1500. So altogether, this Anglo-Saxon period and the Chaucerian period is known as the Middle Middle English. Okay, this is the Middle English period. Here, uh, in the Anglo-Saxon period, there were not much manuscripts found. Okay, no surviving manuscripts are there. Only if we can count, then there are around 400 manuscripts that has been found during the Anglo-Saxon period. So that's why we don't know. Okay, Anglo-Saxon period, also known as the Dark Period. Why? Because we don't know. There is not much survived manuscripts are there. Okay, so that's why it is very hard कि इस एंग्लो सेक्शन पीरियड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, और किस किस टाइप का लिटरेचर लिखा जाता था, वो आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है वो बहुत ही कम है इस पीरियड में। तो यहाँ पे ज्यादातर एंग्लो सेक्शन पीरियड पे ज्यादातर जो ये है, जो लिटरेचर है, लिटरेचर नहीं है बट जो भी कहानी होता था, पोएम्स होता था, वो ओरली ट्रांसफर होता था। सो दैट्स व्हाई we can only find 400 surviving manuscripts of this period. Okay, so that's why it is called the Dark Age. So after that, after the Norman conquest happens, okay, कौन कौन सा किंग आया, कौन कौन सा किंग नहीं आया, कौन कौन सा ट्राइब्स था, उन उन चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। So that is the background of historic background of Anglo-Saxon period. Okay, and after that we will go to Chaucerian age, and you can see that here Chaucerian age, the Anglo-Saxon period is not given, but that we have to learn. Why? Because every period is related to each other. Okay, how? Because maybe you will find some poet, okay, some poet यू आर आस्क्ड, जैसे आपको दिया गया है, मान लो मार्वल, ओके, एंड्रयू मार्वल, तो अगर उसका जो पोयम है वो आपको मिल सकता है एलिजाबेथन एज के अंदर भी और चौसरियन एज के अंदर भी मिल सकता है। आई एम गिविंग यू द एग्जांपल। ओके, तो ये भी मिल सकता है। तो अगर आपने उस टाइम को नहीं पढ़ा, जैसे मान लो एलिजाबेथन एज को आपने नहीं पढ़ा, लेकिन उसका वर्क तो उधर गिवन है, तो आप स्टाइल कैसे पता करोगे कि उस टाइम पे, ओके, उस टाइम पे प्रिवलेंट स्टाइल क्या था? तो उसके अकॉर्डिंग ही राइटिंग्स को देखा जाता है, ठीक है, एजेस के हिसाब से ही राइटिंग्स को देखा जाता है। So that is why we have to learn each and every age. Obviously we don't have to know the what kind of styles they used to follow, or literary characteristic we don't need to know, but we have to know the historical background of each and every age. Okay, so that it will be easy for us to uh, read the this literary works of the writers. Okay, now moving forward, after Chaucerian age we have Renaissance. Okay, the age is this here. Here is the age 1500 to 1660. Here, this is the beginning of, you can say this is the beginning of Elizabethan age. Okay, the early beginning of Elizabethan age. Now what happens here? This Renaissance is the rebirth. Okay, Renaissance means what? Rebirth. Okay, so then Renaissance is the period where the scholars, many of the scholars, they this is the beginning. Okay, beginning of English Renaissance. That means the rebirth of English literature, where the scholars, they tried new things. Okay, because in Chaucerian age they were Chaucerian age or Anglo-Saxon period, people especially in Elizabethan also, okay, Renaissance and Elizabethan, they are almost same. Why? Because this is the blooming era. Blooming era, why? Because यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा अच्छा literatures देखने को मिलेगा, new styles देखने को मिलेगा. But in this Chaucerian age and in Anglo-Saxon period, most of their style was what?
they always follow the this बाइबल्स, कहानी जो है वो बाइबल से होगा, ठीक है। और क्या होता था कि पहले के टाइम पे the kingdoms were obviously ruled by bishops and this church का जो authority है वो रूल किया जाता था। The people they were not allowed to read other books except Bible, and even the बाइबल को भी क्या है उन लोगों को चर्च में आके सुनना होता था, उन लोगों को इशू नहीं किया जाता था बाइबल का एक सर्टेन बुक, ओके। सो they are not allowed to read other books, but Renaissance period ऐसा हुआ, they protested against the this church, they protested against the because they read some books, ठीक है। maybe some people लीगली नहीं इलीगली उन लोगों ने क्या है बुक्स पढ़ा अदर वो को, तो उन लोगों का माइंड जो है वो चेंज होने लगा, एंड धीरे धीरे उन लोगों ने नया टाइप का लिटरेचर का डिमांड किया, और ऐसे करके धीरे धीरे ये रेनेसां पीरियड है जिसमें रीबर्थ हुआ, और अलग अलग टॉपिक्स पे जो राइटर्स है उन लोगों ने लिखना शुरू किया। बट जोशेरियन एज हो गया, इन इन टाइम पे क्या होता था, जितना भी लिटरेचर है वो किसके ऊपर फोकस रहता था, ज्यादातर बाइबल का कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेगा, और बाइबल्स के जो बाइबल का जो ये है कहानी है वही आपको देखने को मिलता था, ये जो जोशेरियन एज है उसमें, ठीक है। बट रेनेसां इज द रीबर्थ, यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी रिटन मेनी स्कॉलर्स सी द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश रेनेसां ड्यूरिंग द reign of Henry the Eighth. Okay, Henry the Eighth. He was the reigning king of that period, and after that Queen Elizabeth came. Okay, and I'll make another video where we will discuss the this ruling system, different king कौन कौन था, क्योंकि जो नाम है वो भी बिल्कुल सेम सेम है हर किंग का, तो दैट्स व्हाई पीपल गेट कंफ्यूज कि हु रूल्ड इन दिस जोशेरियन एज और इन एलिजाबेथन एज और एज ऑफ मिल्टन, ओके। अब यहाँ पे एज ऑफ मिल्टन, एज ऑफ पॉप करके दिया गया है, इन इन एज को भी और इन एजेस का भी एक सर्टेन नाम है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमको फॉलो करके चलना है। Sorry. So this is the Renaissance period, okay, and after that Elizabethan period started. Now, so Elizabethan era, second half of the 16th century, regarded as the height of English Renaissance, right? Rebirth of English literature, and height इसमें क्यों आया? Because it is the blooming age, okay, golden age. Now after that we have Jacobean age. Here also we will learn about the historical background. Elizabethan age में भी हम लोग historical background kings के बारे में जानेंगे, और Jacobean age में भी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। बिकॉज एलिजाबेथन एज जो है इसमें ऑलरेडी ये आप लोगों का जो टॉपिक है उसमें ऑलरेडी एडेड है, प्लस इसमें आपका हम लोग जो पोएट्स और राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे वो है स्पेंसर, ड्राइडन, डन जॉनडन, मार्बल, मार्लो, शेक्सपियर, जॉनसन, ओके, एंड बेकन। तो ये इन सारे राइटर्स बहुत ही फेमस फेमस राइटर्स है। शेक्सपियर का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जो हम लोग को पढ़ना है। इस यही वो एरा है जहाँ पे थिएटर्स का जन्म हुआ, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे ही हम लोग जैकोबियन एज में आते हैं, जैकोबियन एज में आते आते जो किंग है वो भी चेंज हो गया, ठीक है, जो रेनिंग रूलर है वो चेंज हो गया, एंड देन व्हाट हैपन, दे दे दिस सेंसर्ड ऑन, ठीक है, कि अगर किसी राइटर को बुक लिखना है तो उसमें भी एक सेंसरशिप बना दिया कि अगर आप ये सर्टेन बुक लिखेगा तो इसका ऊपर कुछ ना कुछ तो असर होगा लोगों का ऊपर, तो सेंसरशिप बनाया गया और बोला गया कि सर्टेन लिटरेचर सर्टेन टाइम पे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो आपको सेंसरशिप से रिक्वेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये जैकोबियन एज के अंदर में इवन थिएटर्स को भी बंद किया गया था। आप डिटेल में जब पढ़ोगे तो जैकोबियन एज में ये सब पढ़ने को मिलेगा। एंड देन कम्स लेफ्ट रेनेसां 1625 to 1660, okay. So it is the time of metaphysical poet. The metaphysical poet are this first generation metaphysical poet. अब लेट रेनेसा में भी जो metaphysical poet है उसमें दो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन आर जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, ओके, एंड सेकंड जनरेशन आर रिचर्ड क्रैशो, एंड्रयू मार्वल, हेनरी वोगन, एक्सेट्रा। सो एक्सेट्रा का मतलब तो सबको पता ही है, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, राइट। जब इम्पोर्टेंट है बट अभी दिमाग में नहीं आया इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है, एक्सेट्रा। सो दीज आर द
metaphysical poet. Now, metaphysical poet, as we know, they uses conceit in their writing style. Okay, conceit, as we know, is what when we use two two things. Okay, when we compare two things, but these two things are totally unfamiliar, or totally similar नहीं है, ठीक है, unsimilar है. And these two things, okay, like there is one poem of I think John Donne. Okay, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे एक लड़की को, ठीक है, एक लड़की को उसका प्यार को एक कंपस का दो हैंड से कंपेयर किया गया. Now you can see that the love of that girl or that girl, okay, the comparison between these two things कितना अनसिमिलर है, एक है ह्यूमन, एक है कंपस, राइट. सो कंसीट का यूज किया जाता था. ये जो फर्स्ट जनरेशन पोएट है, उन लोगों ने कंसीट का यूज बहुत ही ज्यादा किया है, और बहुत ही अनसिमिलर चीज को कंपेयर करने के लिए किया गया है. ओके, तो इसके बारे में, मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, लेट रेनेसा के अंदर में, ठीक है. एंड देन कम्स, अभी इसी लेट रेनेसा के अंदर ही सिविल वॉर एंड इंटररेगम पीरियड है. ओके, जो कि इसका प्रिवेलेंट जो ये है एज है, वो है 1640 to 1660. नाउ दिस इज द टाइम व्हेन द किंग, ओके, एक किंग था चार्ल्स वन. उसका अत्याचार से लोग इतना परेशान हो गया था दैट ही वाज एग्जीक्यूटेड. ओके, चार्ल्स वन वाज एग्जीक्यूटेड. इसके बारे में हम लोग पढ़ेगा. दिस इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. एंड आफ्टर दैट वी इन द सिविल वॉर इंटररेगम पीरियड देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट इवेंट, दैट इज कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड. ओके, और फिर वहां पे इंग्लिश वॉर भी हुआ. अब कॉमनवेल्थ वो पीरियड है जहाँ पे कॉमनवेल्थ के टाइम पे लोगों ने, ठीक है, ये सिविल वॉर ये जो चल रहा था, इस टाइम पे जो लोग था, उन लोगों ने बोला कि नो, हम लोगों को इंग्लैंड में कोई रूल नहीं चाहिए, किसी का रूल नहीं चाहिए, ठीक है. वी डोंट वांट एनी रूलर. वी विल देयर वाज अ व्हाट नॉट वन रूलर, बट दे इलेक्टेड, दे क्रिएटेड दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है. अब पार्लियामेंट्री सिस्टम का तो पता ही है, जिसमें डेमोक्रेसी सबको मिलेगा, ठीक है. तो देयर वाज नो रूलर. ओके, देयर वाज नो पर्टिकुलर रूलर. जो पावर है उसका डिवीजन किया जाएगा. सो दे कंसिडर देमसेल्फ एज अ free land, okay, as a free people, and their the power have to be divided, okay, in different category, और different people जो है उस लोगों को, जैसे हम लोग मेंबर्स हो गया हम लोगों का, ये एमएलए, एमपी, फिर सीएम, ऐसा हो गया, कुछ ऐसा डिवीजन किया जाएगा. एक इंसान रूल नहीं करेगा. सो they totally gone against the this जो उन लोगों का पास्ट रूलर्स था, उन लोगों के अगेंस्ट गया और बोला कि वो लोग किंगडम सिस्टम नहीं चाहिए, वन किंग जो है ये सिस्टम नहीं चाहिए, ठीक है. तो दिस इज द सिविल वॉर पीरियड. ओके, तो सिविल वॉर पीरियड में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. रेस्टोरेशन, फिर आया रेस्टोरेशन एज, उसके बाद रेस्टोरेशन आया. यू कैन सी 1660, ठीक है, 1660 to 1700. Here this age is also known as the age of Dryden. Okay, and a very important work of his, this Mac Flecknoe, ठीक है, ये वाला भी जो वो है इम्पोर्टेंट वर्क है जॉन ड्राइडन का, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर एज के अंदर में. पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन. बट मिल्टन वी कैन सी कि आपका जो ये है सिलेबस जो दिया गया है, सिलेबस में भी जॉन मिल्टन जो है वो आपका जॉन मिल्टन भी दिया गया है, उसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है. अब मिल्टन जो है वो डिफरेंट एज में भी है, फिर ये रिस्टोरेशन एज में भी है. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू लर्न दीज राइटर्स, ठीक है. जैसे आप देख लो, एज ऑफ मिल्टन दिया गया है, ठीक है, एज ऑफ मिल्टन. तो एज ऑफ मिल्टन तो हम लोग पढ़ेंगे ही कि मिल्टन का क्या मेन काम था, ठीक है, और किस एज में वो बिलोंग करता है एक्चुअली. बट वो रेस्टोरेशन एज में भी आता है, ठीक है. लो, जैसे इसने रेस्टोरेशन एज में पैराडाइज लॉस को लिखा, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को लिखा, ठीक है. अब और इस टाइम पे जो रूलिंग किंग था वो था चार्ल्स टू. ओके, now after that we have Augustan period. Okay, this is 1700 to 1745. Now
अब क्या है, इसमें 18th सेंचुरी लिटरेचर को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें ये जो ऑगस्टिन एज है, यहाँ पे एज ऑफ पोप दिया गया है। एज ऑफ पोप इज व्हाट? ऑगस्टिन एज। ओके, जिसमें एज ऑफ हम लोग पोप के बारे में पढ़ेंगे, जोनाथन स्विफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, ओलिवर गोल्डस्मिथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस एज में हम लोग, और साथ ही साथ इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज एवरी यहाँ पे बहुत सारा है, आप लोग देख सकते हो नीचे भी है। तो इस हम लोग अगर पढ़ाई करने जा रहे हैं इसके बारे में, तो अगर हर एज का अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊं तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब बस मैं यहाँ ऊपर ऊपर आप लोगों को इसका सिलेबस जो है और कैसे हर एज एक दूसरे से कनेक्टेड है इसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो नाउ एज ऑफ सेंस, आफ्टर दैट वी हैव एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ओके, 1745 to 1798, it is the age of Samuel Johnson. Okay, Samuel Johnson. And it this age of sensibility, it gave root to this 19th century romantic movement. So, and you can also say this is the precursor, मतलब the starting वो of जिस एज ने धीरे धीरे स्टार्टिंग किया रोमांटिसिज्म को, उसके बारे में है एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ओके, अब जब रोमांटिसिज्म की बात की जाती है, तो इसमें धीरे धीरे लोगों के अंदर सेंसिबिलिटी आने लगा, और वो लोग अब किसके बारे में लिखने लगे, क्योंकि ऊपर जो है यहाँ हम लोग जब एलिजाबेथन एज पढ़ते हैं तो ब्लूमिंग एज बोला जाता है, जिसमें बहुत ही हाई क्लास नॉवेल्स लिखा जाता था, हाई क्लास क्लर्गी लोगों को दिखाया जाता था, नॉर्मल लोगों के लिए कुछ नहीं था, ठीक है। तो धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके ऑगस्टन एज हो गया, जैकोबियन एज हो गया, उसमें हार्श रियलिटी को भी दिखाया गया है, ठीक है। लेकिन उतना डीप में नहीं, बट अब ऑगस्टन एज आ गया, फिर जब एज ऑफ सेंसिबिलिटी आया, इसमें रोमांटिसिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ प्यार को दिखाना। रोमांटिसिज्म, क्योंकि वो चीज तो एलिजाबेथन एज में शेक्सपियर लोगों ने भी दिखाया, ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज है रोमांटिसिज्म में, जब आप अपना आर्टिस्टिक, लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट के बारे में इसमें दिखाया गया है, ओके। जैसे कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, सेली, ओके। सो they talk about mainly they talk about nature, okay, they talk about एनी अदर टॉपिक, ओके, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर वो बात करो, किसी गर्ल के बारे में बात करो, किसी नेचर में अगर किसी ट्री के बारे में, किसी बर्ड के बारे में बात कर रहा है अपने पोएम के अंदर में या अपने वर्क के अंदर में, तो ये सारा पोएट जो है वो इतना सेंसिबिलिटी के साथ लिखता था कि वो एक ट्री को कंपेयर करेगा एक लड़की से, और बोलेगा कि इस ट्री का जो पत्ता है वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, मतलब इतना सुंदर से वो एक्सप्लेन करेगा अपना पोयम को, दैट कि जो सुनने वाला है वो बहुत ही, या जो पढ़ने वाला है वो नेचर को एक अलाइव पर्सन जैसा कंसिडर करे, ठीक है। नेचर को, एक ट्री को अलाइव पर्सन जैसा दिखाया जाएगा इन इन देयर राइटिंग, ओके। राइटिंग के थ्रू दे विल शो दैट ट्री is a, which is an inanimate object, but they will show it as an animate object, that it takes breath with every of this their lips, okay। जैसे ही हवा आएगा उससे lips जो है वो flip होगा या move होगा, तो every movement what will happen, जो poet है, he will show that the leaves are breathing, or it is dancing or something like this। even river को भी वो लोग बहुत ही सुंदर से वो करता था, ठीक है, explain करता था through their poems in romanticism, okay, romantic period। Now, after that, we have Victorian age. Victorian age, as you can see here, this is the date 1837 to 1901, and the reigning queen of that period was Queen Victoria. Okay, it is also known as the golden age of English literature, and novels become the leading literary genre in English. Okay, so Victorian age में हम लोगों को सबसे ज्यादा, ठीक है, हमें सबसे ज्यादा विक्टोरियन एज में नॉवेल्स का एक रेज हुआ कि ज्यादातर राइटर्स जो है वो नॉवेल्स लिखा करता था, ओके। एंड आफ्टर दैट वी हैव मॉडर्निज्म बिगिनिंग, ठीक है, बिगिनिंग है मॉडर्निज्म का। तीन टाइप है, ठीक है, थ्री टाइप से देखो। एक है अर्ली टाइम, मॉडर्निज्म का अर्ली टाइम, ये एक बिगिनिंग टाइम था मॉडर्निज्म का, 1901 टू 1923।
This is the development of early 28th century. Okay, so here the writer they focus mainly now they went totally against the past beliefs of the past writers. Okay, they never borrow any this inspiration from the past writers. और उसका इंस्टेड वो लोग क्या कर रहा था, वो लोग अपना एक नया नया सोचने का तरीका बनाया. एंड देयर मेन जो फोकस है वो किसके ऊपर था, ट्रुथ के ऊपर. द हार्श रियलिटी ऑफ द सोसाइटी. ओके, द पीपल, वो लोग बोला कि नेचर को छोड़ो, क्या इतना रोमांटिक रोमांटिक नेचर को लेके इतना बात होने का क्या जरूरत है. ठीक है, या या अगर आप नॉवेल्स लिख रहा है तो इतना लव के ऊपर. ओके, या फिर हाई क्लास सोसाइटी के ऊपर, जिससे द मिडिल क्लास पीपल दे डोंट connect with those novels. So this modernism writers they wrote novels related to the harsh reality of the society. Okay, depicting the characters from the this normal category of people. Okay, or you can say the middle class people or uh, poor people. Okay, they saw the characters from those areas. Okay, and yeah, so here you can see that break with past, refuse to conform to the rules any longer. मतलब जो certain rules तक की metaphysical poetry, metaphysical time है तो we will write only metaphysical poetry. Okay, and we will only follow the concepts. Okay, and if it is a period of novels, okay, then we will always write novels. And in novels we will always write about clergy people, about royal people. Okay, ये नहीं था यहाँ पे वो चेंजेस, वो चीज को बिल्कुल ही वो लोग डिस्कार्ड किया. ठीक है, एंड वो लोग नया एक बिगिनिंग किया विद न्यू इंस्पिरेशन एंड न्यू थॉट्स. And after that देखो ये this is the beginning, and after that the high modernism middle period. Okay, the high modernism period जिसमें modernism continue होता है 1923 to 1938, where we will learn about Virginia Woolf. I don't think Virginia Woolf is there in your syllabus. Yeah, let me see. Yeah. So, T.S. Eliot is there. We will learn about T.S. Eliot and other writers also who comes under modernism. Okay, this high modernism, and then we have late modernism. The value is same. Okay, in the early, high, and late, the value is same. That they focus mainly on truth, the harsh reality. Okay, and in the late देखो उसके बाद late, the last, यहाँ पे है modernism and postmodernism in starting and the last. Okay, so 1940 to 2000, it represents the period of artistic and intellectual shift and question the foundation of modernism. Now okay, so early and high जो है इसमें क्या हुआ, इसमें जो फोकस था वो बिल्कुल ही फिक्स था. ओके, बट इन दिस लेट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, in this period 1940 to 2000, uh, obviously the artistic value it changed. Okay, the literary value it changed, and ना जो intellectual thoughts है उसमें थोड़ा सा shift आया, and now they are questioning the beginning of the era, that is modernism, that is 1901 to 1923. उसको उस टाइम का राइटर्स को एक क्वेश्चन कर रहा है कि उन लोगों ने जो ये फाउंडेशन रखा कि हार्श रियलिटी को ही दिखाना है, ऐसा क्यों. ठीक है, तो इसके बारे में ये जो पूरा बैकग्राउंड जो हम थोड़ा सा आप लोगों को जस्ट एक हाईलाइट दिया बैकग्राउंड का, इसके बारे में और डिटेल से हम लोग जब जब और क्लासेस करते हैं उसमें और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे. और इसके बाद हम लोगों को पढ़ना होगा, सबसे लास्ट में आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें दिया गया है मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, लाइक लैटिन राइटिंग, अमेरिकन राइटर्स, अफ्रीकन राइटर्स, Australian writers, South Asia writers. Okay, and in this okay, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर्स है, इसको भी हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा, जिसमें क्योंकि जो साउथ एशियन राइटर हो गया, अमेरिकन राइटर हो गया, ये इन लोगों ने राइटिंग कब शुरू किया, जब पोस्ट कॉलोनियल वार होने लगा, जब ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इन लोगों ने अमेरिका और साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया, इन सारे एरियाज में कॉलोनीज बनाने लगा। ठीक है, तो इन सारी चीज के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। तभी उन लोगों ने राइटिंग शुरू किया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग इंडियन राइटर्स राइटिंग इन इंग्लिश, लाइक ये तो सबसे वो है, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निजम स्केल एंड के एन दारूवाला, रस्किन बॉन्ड मोस्ट फेमस, ओके, आर के नारायण मोस्ट फेमस, मुल्क राज आनंद ये भी फेमस है, खुशवंत सिंह। क्लास 9 से इसमें, क्लास 11th में इसका 11th में या 12th में आप लोगों ने ऑलरेडी इसका एक कहानी पढ़ चुका है। ठीक है, एंड कमाला दास हो गया, मार्कंडे, इन लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ यहाँ पे एक्सेट्रा लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ आपको और भी राइटर्स के बारे में पढ़ना है। हियर ऑल्सो इन 19 एंड 28th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर, हियर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है हेमिंगवे, विटमैन, हैथर्न, इमर्सन एक्सेट्रा। दैट मीन्स यहाँ आपको और भी एक्स्ट्रा एक दो राइटर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सिलेबस में। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल जो जिसने ये सिलेबस बनाया है, ये ऑफिशियल सिलेबस बनाया है, उसका थिंकिंग कैपेसिटी खत्म हो गया। बट स्टिल देयर आर सम राइटर्स, ठीक है, जिसको उसने मिस किया है। दैट इज व्हाई ही और द ऑफिशियल्स दे रोट ETC, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, ओके, कि थिंकिंग कैपेसिटी के बाहर हो गया, इतना इम्पोर्टेंट है बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो भी आएगा। ठीक है, दैट्स व्हाट दिस ETC suggests, okay, so that we are going to discuss, discuss in our classes, the coming classes that we are going to start soon. So this was the syllabus, okay, this was the syllabus in detail syllabus, okay. So when I say मॉडर्निज्म, ठीक है, अब ये जो यहाँ पे 1940 एंड दिस 2000s, okay, this was the period of also the American literature also we will learn here, okay, American literature, यहाँ हम लोग इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ मैंने ऐड नहीं किया है, आई थिंक मिस हो गया है, बट आप लोगों को याद रखना है दैट ये अमेरिकन लिटरेचर का बिगिनिंग एरा भी था। ठीक है, so this was your syllabus. If you think that this video is informative for you, then please make sure that you this contact at our office if you wanted to join the courses, because we are going to start the class soon. So that's why I have made this video, so that most of the people will get idea, because people get confused about the syllabus. So that's why I made this video about the syllabus. So if you like the video, please make sure that you contact our office if you wanted to join our courses online or offline as well. So please make sure that you contact our office and join the course as soon as possible. Thank you so much.